Hello students, very good morning to all of you. So now today I am going to start the next exercise of the polynomial, and it is exercise 2.4. So now you see here in this video how the question of the exercise 2.4 is to be solved. Here we have taken the first question from the exercise 2.4. It is telling that determine which polynomial has x plus 1 as a factor. There are too many polynomials. Out of these we have taken two to show that how it could be solved. So here you have been asked that whether x plus 1 is factor of the given polynomial or not. So what we have to do, here is the first polynomial, first questions, x cube plus x square plus x plus 1. We have assumed that this is px, and we have to prove that, we have to verify that, not prove that, we have to verify that whether x plus 1 is factor or not. So what we have to do, first we have to assume that this is 0, and we have to find the value of variable, hence variable x becomes minus 1. Now how can we check? In by-factor theorem, we have to write this statement. We must have to write this statement. By factor theorem, as we know that, if remainder p minus 1, how we get the remainder? If we put the value of x minus 1 in the given polynomial. So, if the remainder p minus 1 equal to 0, then x plus 1 is factor of px. So, now we find here the remainder p minus 1. P minus 1, so what it becomes? At the place of x, everywhere we put the value of x equal to minus 1. So minus 1 cube, minus 1 square, minus 1, and this is plus 1. After solving, we get here 0. It means when we put the value of x equal to minus 1, we got it is 0. It means remainder will be 0. Since remainder is 0, by putting the value of x equal to minus 1, it means that x plus 1 is factor. Hence we can say that x plus 1 is factor of px. Now we come to the next question. Okay, the next question is question number, I think it is 4 or 5. You tally it with your match it with your book. It is x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. We also assume it as px. Now again in the same case, x equal to minus 1. So we again find at every question, when you solve any question, you have to put this statement. You must have to put this statement. If you not put this statement, then question is incomplete. Hence remainder p minus 1, again we put here at the place of x equal to minus 1. So you see here, after solving we got that it becomes 2 root 2, means remainder is not 0, it is not equal to 0. So since remainder p minus 1 is not equal to 0 for this polynomial, it means x plus 1 is not the factor of this polynomial. Hence x plus 1 is not the factor of px. Now we move to second question. There are too many questions in this first one, out of which we solved only 2 questions, and you see it carefully, view it carefully, and after that you try to solve the another questions from this question number 1. Now in the question number 2, px, this is the polynomial px, and there is another polynomial x plus 1. To determine whether gx is factor or not, आपको पता लगाना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है. सेम थिंग है जैसा ऊपर में था. अगर फैक्टर होगा फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हमको पता लगाना ये फैक्टर है कि नहीं, तो इसको हम 0 कंसिडर कर लिए और यहाँ से फिर वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. बाई फैक्टर थ्योरम, इफ x प्लस 1 इज फैक्टर, देन रिमाइंडर p माइनस 1 इक्वल टू 0. सो वी फाइंड p माइनस 1. तो x के जगह पर मैं माइनस 1 का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हर जगह x के प्लेस में पुट कर दिए. यहाँ पर पुट करने के बाद में इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया. तो सिंस रिमाइंडर p माइनस 1 इक्वल टू 0, चूँकि p माइनस 1 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू जब हम माइनस 1 पुट किए तो 0 आ गया.
तो -1 को अगर इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1। इट मीन्स x+1 इज फैक्टर ऑफ px। अब देखिए यहाँ पर मैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था 2 का। रिमेनिंग क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर px gx बदला हुआ रहेगा तो उसी हिसाब से आप उसको चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ दे रहा है कि ये फैक्टर है, इसमें आपको चेक करना था, इसलिए आपने रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर को शो किया कि इट इज़ 0। बट यहाँ दे रहा है कि x-1 फैक्टर है। तो अगर दे रहा है कि x-1 फैक्टर है, इसका मतलब हो गया कि हमको पता है कि रिमाइंडर इसका 0 होगा, तो हम लोग यहाँ रिमाइंडर 0 लेकर के ही चलेंगे। और यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल दे रहा है, यहाँ से k का वैल्यू निकालना। अब देखिए यहाँ पर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, x-1 इक्वल टू 0। चूँकि ये फैक्टर है इसलिए फैक्टर को 0 मान लिया, यहाँ से x का वैल्यू 1 निकला। तो सिंस x-1 इज फैक्टर, हेंस बाई फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0। ये पता है कि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हमने क्या किया, हर जगह पॉलिनोमियल में x के जगह पर 1 पुट कर दिया यहाँ पर मैं, और रिमाइंडर चूँकि हमको मालूम है कि 0 इसलिए पहले ही 0 ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, k -√2 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू इस दोनों वैल्यूज़ को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो -√2 + √2 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। तो इन दिस वे वी फाइंड हियर k इक्वल टू √2 - 1। अब देखिए यहाँ पर मैं एक 4th नंबर क्वेश्चन है इसी का। तो देखिए ये यहाँ एरो मार्क दिए हैं कि ये स्टेटमेंट हर जगह रहेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, x-1 इक्वल टू 0, यहाँ भी शो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ भी हमने क्या किया, x-1 इसका फैक्टर है, दिया हुआ तो k का वैल्यू निकालना है। तो फिर हम क्या किए, हर जगह x के जगह पर 1 पुट किया, k इंटू 1² -3 इंटू 1 + k इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, k -3 + k इक्वल टू 0। सो नाउ k + k 2k एंड -3 को उधर भेज दिए 3, तो k का वैल्यू क्या निकल गया, 3/2। मतलब k का वैल्यू अगर 3/2 होगा, 3/2 पुट करेंगे k के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, x-1 जो है वो इसका फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए था। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से 3 क्वेश्चन लिए। इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, जो आप लोग क्लास 9 में भी किए हैं और 8 में भी किए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इस पर मैं डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। 12x² - 7x + 1। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 12 × 1 12 हो गया, इसको 2 पार्ट में बांटिए कि ये 7 आ जाए। तो -4 और -3 कर लिए। यहाँ दोनों जगह से 4x कॉमन निकाल लिए और इस तरह से यहाँ से 1 कॉमन निकल गया। और फिर यहाँ से देखें 3x - 1 3x - 1 कॉमन है तो कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया, 4x - 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। ये 4 का 2 का भी उसी तरह मिडिल फैक्टराइजेशन है, और ये 4 का 3 है, और ये 2 नंबर है, इसका भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। इस फैक्टराइजेशन को देख लीजिएगा और अदर फैक्टराइजेशन इस पर में बना लीजिएगा। रिमेनिंग इसमें जो है एक अलग तरह का फैक्टराइजेशन है, जिस फैक्टराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।